back. I'm Vandana and we are learning science of class 1. This is EduRite series by Amit Publishing House and here is the book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 8, Food, Housing and Clothing. Let's move on to intended learning outcomes. So we are going to learn about we need food, we need clothes and we need a house. ये तीनों चीजें हमें चाहिए जीवित रहने के लिए. So let's move on to kick off. Needs are the things that help us live happy, healthy lives. So needs means ज़रूरतें. ज़रूरतें ऐसी चीज़ हैं जो हमें हैप्पी रहने में, हेल्दी रहने में मदद करती हैं. Just like plants need sunlight and water to grow, जैसे कि plants को चाहिए sunlight और water grow करने के लिए, we have special things we need too. So हमें भी special चीज़ों की ज़रूरत होती है. The three most important needs are, जो तीन main important needs हैं वो है food, house and clothes. ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए होती हैं. So let's move on to Funtopia. Fill in the missing letters. ये जो missing letters दिए गए हैं पिक्चर को देखना है and हमें इन्हें fill करना है. तो पहला है we love eating dash in summer. So we love eating mangoes in summer. I love my house. And the third one is this is my favorite frog. So these are the answers. Write it down. Now let's move on to we need food. So all of us need food to survive. हम सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए. A house to live in and clothes to wear. घर चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और कपड़े चाहिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. So food is the basic need of all living beings. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? खाना. Food gives us energy to do our everyday tasks like studying, playing and exercising. जो फूड है वो हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है ताकि हम अपने रोज़ के काम कर सकें, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि खेलना और जैसे कि एक्सरसाइज करना. We get our food from plants and animals. हमें हमारा ये जो खाना है वो plants और animals से मिलता है. We eat grains, fruits and vegetables. हम grains खाते हैं, हम fruits खाते हैं और vegetables खाते हैं. We get these from plants. हमें ये plants देते हैं. Food also helps us to grow and stay healthy. Food जो है हमें help करता है grow करने में और हेल्दी रहने में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, पल्सेस मीन्स दालें एंड ग्राम. सो दीज आर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ये वो खाना है जो हमें प्लांट्स देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. So rice is one of the most widely eaten food in the world. Rice जो है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला food item है पूरे world में. Some of us also eat mutton, fish, eggs and chicken. हम सब जो हैं हम मटन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, एग भी खाते हैं और चिकन भी खाते हैं. कुछ लोग खाते हैं. We get these from animals. अब ये जो food items हैं ये हमें animals से मिलते हैं. We also get milk from animals. Milk भी हमें animals देते हैं. We should drink milk every day. हमें रोज दूध पीना चाहिए. It makes our bones and teeth strong. ये हमारे bones को means हड्डियों को और teeth को means दांतों को strong बनाता है. We make many products from milk. और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. तो आप देख सकते हैं ये है मिल्क. मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, चीज़ बना लिया, आइसक्रीम बना ली. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश है, एग है. सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन देता है हमें? एनिमल्स देते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप.
So butter, curd, ghee, cheese and ice cream are made from milk. ये सारी चीजें मिल्क से बनती हैं. We should eat food at fixed time every day. एक फिक्स टाइम पे हमें खाने को खाना चाहिए. The food eaten at a particular time of a day is called a meal. वो खाना जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं उसे हम मील कहते हैं. The meal we eat in the morning is called breakfast. वो खाना जो हम सुबह खाते हैं सुबह सुबह उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं. The meal that we eat in the afternoon is called lunch. वो खाना जो हम दोपहर में खाते हैं उसे लंच कहते हैं. And the meal that we eat in the night is called dinner. और वो खाना जो हम रात में खाते हैं उसे डिनर कहा जाता है. सो आप देख सकते हैं बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है कितने बजे? 7:30 बज रहे हैं सुबह के. फिर लंच कर रहा है 1 o'clock दोपहर में एंड डिनर कर रहा है रात के 8 बजे. क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? वी नॉर्मली ईट 3 meals in a day. हम एक दिन में 3 बार खाना जरूर खाते हैं. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. Let's move on to twisting time. So here you have to write down what you ate for breakfast. आज आपको लिखना है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया और डिनर में yesterday क्या खाया था in the table given below. So ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में जो भी चीज़ें आपने खाई उनके नाम लिखने हैं. Write the name of your favorite food. आपका जो भी फेवरेट फूड है उसका नाम यहाँ पे लिखना है. And how often do you eat outside in a week. एक हफ्ते में आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं वो यहाँ पे लिखना है. So you have to do it yourself. Now let's move on to we need a house. हमें घर की भी ज़रूरत पड़ती है. So we need a place to live in. रहने के लिए हमें एक घर चाहिए. And we live in a house. और हम एक घर में रहते हैं. A house protects us from rain, heat, cold and storm. जो ये घर होता है ये हमें बारिश से, गर्मी से, ठंड से और आंधी तूफान से भी बचाता है. It also protects us from thieves. ये हमें चोरों से भी बचाता है. We feel safe and comfortable in our house. और हम अपने घर में safe feel करते हैं, comfortable feel करते हैं. The house has different rooms for different activities. हमारा जो घर है उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए. वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं. कहाँ पे? बेडरूम में. ये है हमारा बेडरूम. वी कुक फूड इन द किचन. हम किचन में खाना पकाते हैं. वी यूज द बाथरूम फॉर बेदिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स. नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम बाथरूम को यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स ट्विस्टिंग टाइम. सो लुक एट द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो. यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी. वेयर विल यू फाइंड देम. इन चीजों को हम कहाँ पे ढूंढेंगे? किचन में या फिर बाथरूम में. राइट के फॉर किचन एंड बी फॉर बाथरूम. अगर किचन में मिलेगी तो हमें के लिखना है, बाथरूम में मिलेगा तो हमें बी लिखना है. तो पहला है टॉवल. टॉवल कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली बाथरूम में. सॉल्ट किचन में. सिलेंडर किचन में. सिमिलरली टूथपेस्ट और टूथब्रश बाथरूम में. सोप बाथरूम में और ऑयल किचन में. वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन. हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. Chairs, tables and other furniture items should be regularly dusted. So ये जो चीज़ें हैं जैसे हमारे घर में अगर चेयर है, टेबल है या फिर दूसरे फर्नीचर हैं उन सबको रेगुलरली डस्टिंग करनी चाहिए ताकि उस पर धूल मिट्टी ना जमे. Now the next topic is we need clothes. हमें कपड़े चाहिए. So we need clothes to cover ourselves. अपने आप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए हमें clothes चाहिए. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. ये जो clothes है हमें heat से, cold से, rain से और insect bite से बचाते हैं. We wear different types of clothes during different seasons. हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अलग अलग seasons में. We wear woolen clothes during the winter season.
हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में। वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुल, ये जो है वुल से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। एंड वी गेट वुल फ्रॉम शीप, और शीप हमें वुल देती है। सो ब्लेजर, कैप, स्वेटर, मफलर, ग्लव्स और सॉक्स, ये सारे कपड़े हम पहनते हैं विंटर सीजन में। वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन। सो समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल, ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, ये कॉटन से बनते हैं। एंड वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, और ये कॉटन हमें कॉटन प्लांट देता है। सो स्कर्ट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, फ्रॉक, ब्लाउज, ये सारी चीजें हम कब पहनते हैं? समर सीजन में पहनते हैं। नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन वी यूज रेन कोट्स एंड गम बूट्स। जब रेनी सीजन होता है उस समय हम रेन कोट और गम बूट्स को यूज करते हैं। एंड दीज हेल्प टू कीप अस ड्राई व्हेन वी आर आउटडोर्स, ये हमें बाहर जब हम रहते हैं उस समय ड्राई रहने में हेल्प करते हैं। सो ये है हमारे रेनी सीजन के क्लोथ्स। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। आवर शूज एंड सॉक्स प्रोटेक्ट आवर फीट, शूज और सॉक्स जो है हमारे फीट को प्रोटेक्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर शूज पॉलिश्ड, हमें हमेशा अपने शूज को पॉलिश करके रखने चाहिए। सो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन। So here you have to associate your school uniform of summer and winter with the types of clothes, cotton and woolen. आपको बताना है कि आप जो समर में स्कूल के कपड़े पहनते हैं या विंटर में जो स्कूल के कपड़े पहनते हैं वो कैसे हैं, कॉटन है या वुलन है। एंड ऑल्सो यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट रूम्स इन योर हाउस, आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं। सो ये आपको डिस्कस करना है। Let's move on to word say. So here task, task का मतलब है a piece of work that has to be done, एक ऐसा काम जिसे अभी करना है। Next है protect, protect means to keep somebody something safe, किसी चीज को किसी पर्सन को बचा के रखना, सेफ रखना। Comfortable का मतलब है that makes you feel physically relaxed एंड इन नो पेन, ऐसी कोई चीज जो आपको जो है रिलैक्स रखे, आपको बिना किसी दर्द के रखे, उसे हम कंफर्टेबल कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्विक रिव्यू। सो फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबकी बेसिक नीड है फूड। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें हमारा जो खाना है वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें मिल्क जो है रोज पीना चाहिए। वी शुड ईट फूड एट फिक्स टाइम एवरी डे, एक दिए गए टाइम पे ही हमें रोज खाना चाहिए। वी नॉर्मली ईट 3 मील्स इन अ डे, दिन में हम 3 बार जरूर खाना खाते हैं। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस, हम अपने घर में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। सो these are some of the points that you have to remember. Let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So A exercise is darken the correct option in OMR sheet. First one is this gives us energy to work and play. क्या चीजें जो हमें एनर्जी देता है खेलने और कूदने के लिए, काम करने के लिए? Food, shelter, clothes और house. Correct answer है food. क्वेश्चन नंबर 2, वी कुक फूड इन द, हम खाना पकाते हैं कहाँ पे? बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में या फिर स्टडी रूम में? करेक्ट आंसर इज किचन। क्वेश्चन नंबर 3, वी गेट वूल फ्रॉम दिस एनिमल, कौन सा एनिमल है जो हमें वूल देता है? कैट, शीप, काउ या फिर हॉर्स? करेक्ट आंसर इज शीप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज, व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स from the box. So here the first one is food is the basic need of all living beings. Second, we get eggs from animals. Third one, we should eat food at fixed time every day. Fourth one, we rest and sleep in the bedroom. And
The fifth one is we should always keep our shoes polished. Let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one is we get food only from plants. This is wrong. Second, breakfast is eaten in the afternoon. This is also wrong. Third one, clothes protect us from insect bites. Yes, correct. Fourth one, gum boots and raincoat protect us from getting wet. Correct. And the fifth one is the food eaten at particular time of a day is called lunch. So this is also wrong. So these are the answers that you have to write down. And let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first one is name any 2 food items that we get from animals. So the 2 food items that we get from animals are milk and meat. Question number 2, why should we drink milk? So we should drink milk because it makes our bones and teeth strong. Question number 3, why do we wear shoes and socks? We wear shoes and socks to protect our feet. Now, question number 4, which type of clothes keeps our body cool? So, cotton clothes keep our body cool. Question number 5, in which room do we bathe and wash clothes? So, we bathe and wash clothes in the bathroom. So, these are the answers that you have to write down, and with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.